आपसे शुरू करते हैं सर। बाहुबली के बाद आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। आपकी हर फिल्म जो है बहुत ग्रैंड लेवल पे बनाई जाती है। क्या आप किसी तरह का प्रेशर महसूस कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर? जिस तरह की उम्मीदें बढ़ा दी हैं आपने बाहुबली फिल्म बनाने के बाद, और अब पैन इंडिया लेवल पर आपको एक बड़े डायरेक्टर के तौर पर देखा जाता है बाहुबली रिलीज होने के बाद, तो कितना प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर? Very frankly, no pressure at all. It's all pleasure that if so many people are expecting your film to entertain them, that means so many people are going to come to the theaters on the first day. So that's a boost of energy for me. There is absolutely no pressure because the confidence comes to me from my script, from the number of sequences that I have in the film which will connect to the audience, which will very, very strongly. And I have two powerhouse actors to do the job for me. The kind of performances that they gave, either the expressions or the action sequences that they were involved in. I'm very, very confident that we have a winner in our hand. आप दोनों के साथ पहले काम कर चुके हैं, जूनियर एनटीआर के साथ भी और रामचरण के साथ मगधीरा में वो फिल्म देखी थी मैंने, बहुत ग्रैंड लेवल पे आपने बनाई थी। इन दोनों एक्टर्स को दोहराया है आपने अपनी फिल्म में। अजय देवगन और आलिया भट्ट भी इस फिल्म में है। कॉन्शियस डिसीजन था कि पैन इंडिया लेवल पे आप अपनी फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं तो बॉलीवुड के भी स्टार्स इसमें होने चाहिए, या क्या आपके मन में चल रहा था जब आपने अजय और आलिया को कास्ट किया? To make or not to make a pan India film comes much later. First my story happens, the story has to excite me. Then as the story is progressing, I'll think of which actor will suit the role. For example, in the trailer you have a shot where an actor looks at the tiger that is in front of his face and screams at the tiger. If that image is in my mind, I'll think of who is the actor who can convincingly do that. Then my answer is my NTR. And in the trailer you have a sequence where the fire opens and you see a hero there who is not doing much, but he's just looking at the screen with such intensity that you feel the fire of the power on your face. Who is the actor who can do it? My answer is my Ramcharan. Then I have a character who says just one line and you believe that is truth. Then I have Ajay Devgan. And I have a character who has to look very fragile, very soft, very innocent. But she should have enough strength to contain these two forces. Who is there? I have Alia. As the actors come into the place, then the question of pan India or not comes in. But until then, it is the actors who suit my story. So I'm super excited to have these powerhouse actors in my film. Pan India film or not is a later decision. जूनियर एनटीआर, आप हिंदी ऑडियंस के सामने आने वाले इस फिल्म के ज़रिए आपने तमाम फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, साउथ की बहुत बड़े स्टार हैं आप। कितनी एक्साइटमेंट है कि अब आप पैन इंडिया लेवल पर इस फिल्म में हिंदी दर्शकों के सामने भी आने वाले नॉर्थ के जो ऑडियंस है तमाम। पैन इंडिया की बात छोड़िए आप, वो तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर वर्किंग विद राजमौली पोस्ट बाहुबली, ऑब्वियसली इट वाज अ पैन इंडियन सब्जेक्ट, सो वो छोड़िए सर, वो that's it should happen, it will happen. But what is more exciting is कि हम दोनों ने इस फिल्म के लिए हमारी ओन डबिंग की थी सर, हिंदी में, and which is very exciting क्योंकि सर see I've watched my own dubbing movies सर, यहाँ के डबिंग कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया था, but लेकिन एक एक्टर के जरिए when you look through an actor's eyes, मुझे लगता था कि अरे यार यहाँ का एक्सप्रेशन वैसा था और यहाँ डबिंग डिफरेंटली चले गया उधर। व्हाट इफ आई वाज डबिंग फॉर माय ओन फिल्म, व्हाट इफ आई वाज डबिंग विद माय ओन वॉइस फॉर दैट सीन, कितना अच्छा रहता था वो। सो दैट्स व्हेन ही आस्क्ड अस टू डू इट, वी वर मोर एक्साइटेड फॉर दैट एंड कांट वेट फॉर। तो एक डायलॉग अगर इस वक्त अगर आप फिल्म का छोटा सा सुनाए हमें हिंदी में। Don't reveal anything from the film because I tell so much. Sir, let me tell you one thing, because
My film is a visual medium. I tell my story through visuals, and as it is, my dialogues are very little in the film. So every line reveals something. Already, I told the entire story in the trailer. So I can't let him reveal any of the dialogues. आप कितना बॉलीवुड की फिल्मों को फॉलो करते हैं, हिंदी सिनेमा कितना देखते हैं, कौन कौन से एक्टर्स पसंद हैं आपको, कुछ अगर आप बताएं? Amitabh ji's movies, though, they tickle the audience, the mass audience, in another level. And after that, I love Salman Bhai's movies, be it Bajrangi Bhaijaan, Sultan, Ekta Tiger. I mean, it's fantastic. One of those few actors who can really raise the common man feeling on a big screen and make them relate to his character, especially in Bajrangi Bhaijaan. What a beautiful character. We follow all movies. Even in OTT pandemic time, we saw so many films like Razi, Uri, Sher Shah. Fantastic movies. आप बताएंगे, आप भी हिंदी सिनेमा बहुत फॉलो करते हैं, कौन कौन सी फिल्में यहाँ की हिंदी फिल्मों की बात करें तो देखकर आप बड़े हुए, कौन कौन से स्टार्स को आपने बहुत एडमायर किया है हिंदी सिनेमा के? सर, माय फेवरेट राइटर्स थे सलीम जावेद सर. मतलब वो जो फिल्में थी उनकी, वो जो डेप्थ था कैरेक्टर्स में, और वो जो फिल्म का जो ड्रामा था, वो इमोशन था. वी ऑल ग्रो अप ऑन दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम दीवार टू शोलेस टू योर जंजीज टू आई एम अ बिग सलमान फैन टू, सो टू योर बजरंगी भाईजान्स, टू योर सुल्तान्स. एंड जैसे आपने कहा सर कि वो जो रेखा थी वो रीजनल लैंग्वेजेस की, वो मिटती जा रही है, और थैंक्स टू हिम, इन्होंने साबित किया था कि एब्सोल्युटली बिगेस्ट शेयर गोज टू हिम. एंड फॉर मी, दैट्स व्हाट आई व्हेन आई सी दैट ओल्ड मूवीज वेयर सलीम जावेद सर हैव रिटन द मूवीज, आई सी हिम and here's this man who believes in emotions, believes in dramas, and your entry into a pan-Indian movie can't be better than this opportunity this man has given us. दीवार और ये तमाम फिल्में कितनी बार आपने देखी? Sir, many a times. मतलब when we were kids, you know, my father used to watch them. हमारे पिताजी देखते थे, हमारी पूरा फैमिली, क्योंकि हैदराबाद से हैं सर, और हिंदी फिल्म वाकई रिलीज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक वहीं भी रिलीज होते थे, और थिएटर्स थे हमारे, तो वहाँ जाता था और वहाँ देखता था मूवीज़ को. और दीज फिल्म्स आर काउंटलेस सर, इन्हें बोलते हैं क्लासिक्स. When you want to repeat, बस लेते हैं और फिर से देखते हैं. You don't count it. You watch it endless times, and that's why they're called classics. They're like an encyclopedia. इस फिल्म में अजय और आलिया भी हैं. उन दोनों के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? अजय देवगन के भी फैन है फूल और कांटे, शायद आपने बचपन में देखी थी उनकी फिल्म. सर अजय देवगन सर के साथ स्क्रीन स्पेस नहीं था हमारे लिए, क्योंकि उनका एक सेपरेट सोल था उनका. तो बट वी मेट हिम ऑन सेट्स एंड ही वाज अ थरो जेंटलमैन. His seniority, his intensity in his eyes, उनके आंखों में जो इंटेंसिटी है, तो वो बहुत रेस्पेक्ट के साथ, प्राइड के साथ कैरी करते हैं वो. और फूल और कांटे भी आपने कई बार देखी उनकी? जी एग्जैक्टली, वो उनका एंट्री, वो बाइक का एंट्री, और मुझे ट्राई करना था वो, बट लेकिन माय मॉम वाज लाइक, नहीं, ये फिल्मों में ही होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते हैं, तो डोंट ट्राई इट. एग्जैक्टली, डिस्क्लेमर है नीचे. Yes, disclaimer है नीचे. He was our action hero, sir. So we grew up watching his movies also. And when the opportunity was there in this film, I was awestruck looking at him on the sets. And आलिया के साथ काम करना भी बहुत अच्छा लगा सर. सर, ये opportunity है कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है कि हम we are from the south and they are from the north. There is just so much learning of culture which is happening. एक्टिंग की बात नहीं है सर, इधर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है. So which is very good. See, they are getting to know about
South. We are getting to know about North. कई फिल्में मैंने भी इस तरह की देखी हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, साउथ की फिल्में, जहां पर ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो हिंदी बोल रहे होते पूरी तरह से, वो वहां की भाषा में बात नहीं कर रहे होते, तो ऐसी कई फिल्मों में अब नजर आने लगा है और वो बढ़ रहा है। कई हिंदी गाने भी बजते रहते हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स भी बज रहे होते हैं साउथ की फिल्मों में, हिंदी सॉन्ग्स बजते होते हैं। जी लैंग्वेज का डिफरेंस है लेकिन मेंटालिटी एक ही है ना। वी आर ऑल मूवी लवर्स. That's the aim. So when you're bringing everyone together, the chunk increases. राम, आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें ऐड कुछ करना चाहेंगे और अजय के साथ और आलिया के साथ काम करने का आपको मौका I mean, मिला? like Tarak said, I'm a huge fan of Ajay sir's work, especially his intensity, his action, Singham series. We watched it a zillion times, all his films. And just to be part of a movie which Ajay sir is also part of, it's an honor. It's really an honor. Somebody we looked up to when we were kids. And to be part of, we couldn't share the same screen space with him, but this is enough. He's being part of our film.